Good morning, student. Today we will see the format of account of non-trading concern. In previous lecture, we had seen the meanings of account of non-trading concern and the accounts which are prepared under non-account trading concern. Now, in this lecture, we will see the format of account of non-trading concern. In account of non-trading concern, the following three account and statements are prepared. First, receipt and payment account. Second, income and expenditure account. And third, balance sheet. Now, we will see one by one. Number first, receipt and payment account. We had already seen in previous lecture the meaning of receipt and payment account. It is just like a cash book. If cash comes into the business, then it will be recorded on receipt side. If cash goes out from our business, then it will be recorded on payment side. Here we have to make some correction. Here it will be payments. Receipts amount, payments amount. Now let us see the format of receipt and payment account. We have to understand the content which are in the receipt and payment account. What are their meanings? And if we understand the meaning of this content, then we can easily prepare the income and expenditure account and balance sheet on the basis of this receipt and payment account and the adjustment. We have to understand the one things that we do not have to prepare the receipt and payment account in the question. Receipt, payment account and adjustment will be given in the question, and on the basis of this receipt and payment account and adjustment, we have to prepare just two account and statement, that is income and expenditure account and balance sheet. But here we have to understand the content of receipt and payment account, because it will posted into income expenditure and balance sheet. That's why we are just understanding this receipt and payment account. Let us see on receipt side, all cash comes into the all cash comes into the organization, it will be recorded on receipt side. Cash, it may be related to previous year, current year or next year. Now first content will be our opening balance of cash in hand, cash and बैंक. पहला कंटेंट इसका ओपनिंग बैलेंस होगा और आखिरी कंटेंट आएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस, सबसे लास्ट में कैश और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के नाम से. अब इसके कंटेंट हमें वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से कंटेंट हैं इसमें आते हैं. तो पैसा आ रहा है अगर ऑर्गेनाइजेशन में नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, तो वो रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड होगा, और पैसा फर्म से जा रहा है तो वो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड होगा. अब बहुत से ऐसे सोर्सेस हैं जहाँ से फर्म को पैसा मिलता है, तो वो सारे के सारे सोर्सेस से जो पैसा आ रहा है वो सब रिसिप्ट में होगा. अब रिसिप्ट चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, वो सारे के सारे जो है वो रिसिप्ट साइड में आएंगी. और पैसा फर्म से जा रहा है चाहे वो कैपिटल पेमेंट हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो पेमेंट साइड में आएगा. तो चलिए अब इसके कंटेंट हम देखते हैं और एक एक कंटेंट को समझते हैं कि उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है. The first content will be opening balance, cash in hand, cash at bank at the beginning of the year. Next, here we can see next subscription. What is meant by subscription? अब subscription किसे कहेंगे? Subscription means it is an annual donation paid by the member to the organization. नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा जो है इसके जो मेंबर होते हैं वो मेंबर ही ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं. तो हर मेंबर को ये कंपलसरी होता है कि वो साल में एक बार डोनेशन के तौर पे अपनी जेब से कुछ पैसा फर्म को दे, फिक्स अमाउंट फर्म को दे, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को दे, तो उसे ही बोला जाता है सब्सक्रिप्शन. अब ये संस्था के लिए इनकम होती है, पैसा मिलता है संस्था को, इसलिए ये रिसिप्ट साइड में आपको दिख रहा है. अब देखिए सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये 3 साल का सब्सक्रिप्शन गिवन होता है. एक प्रीवियस ईयर का, एक करंट ईयर का और एक
नेक्स्ट ईयर का। अब इस साल जो हमें पैसा मिल रहा है वो पिछले साल का भी कोई दे सकता है, इस साल का भी दे सकता है, या नेक्स्ट ईयर का। तो ये रिसिप्ट साइड में आपको तीनों साल का दिखेगा। तो ये यहाँ इस तरह आपको रिसिप्ट में ये देखने को मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन आप समझ गए कि क्या है। उसके बाद है टू एंट्रांस फी। जब कोई बंदा या पर्सन किसी संस्था नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेना चाहता है या मेंबर बनना चाहता है, तो उसको एंट्री के समय जो है एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, जिसको हम एंट्रांस फ़ी कहते हैं। वो एंट्रांस फ़ी के बाद एडमिशन फ़ी, सेम एंट्रांस फ़ी ही एडमिशन फ़ी है। संस्था में एंट्री लेना या एडमिशन लेना जो है वो एडमिशन फ़ी या एंट्रांस फ़ी कहेंगे। ये संस्था के लिए इनकम है। उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अगर कोई पर्सन बंदा किसी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ टाइम का मेंबर बना रहना चाहता है, तो अब उसको एक लमसम अमाउंट संस्था को पे करना पड़ेगा, जिसे बोला जाएगा लाइफ मेंबरशिप फ़ी। तो लाइफ मेंबरशिप फ़ी ये रिसिप्ट में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं ये भी बताते चलूँ कि रिसिप्ट साइड के जो कंटेंट है वो आपको इनकम साइड में या लाइबिलिटी साइड में देखने को मिलेंगे, और पेमेंट साइड के जो कंटेंट है वो एक्सपेंडिचर या एसेट में देखने को मिलेंगे। जिस तरह मैंने आपको फाइनल अकाउंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रिक्स बताई थी, एक ट्रिक बताई है, तो उसी तरह इसको सॉल्व करने की भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे तो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के सारे प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर सकते बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये इसमें आप रिसिप्ट में दो तरह की रिसिप्ट देखेंगे, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। जो कैपिटल रिसिप्ट होती है वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में आएंगी, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम में आएंगी। पेमेंट में एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा, रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी रिलेटेड टू परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो एसेट में आएगा। और इसके अलावा जो डेली रूटीन के खर्चे हैं, शॉर्ट टर्म के एक्सपेंडिचर है, वो जो है आपको एक्सपेंडिचर में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ये इनकम में आएगा, एंट्रांस फी इनकम में, एडमिशन फ़ी भी इनकम में आएंगी। अब इससे रिलेटेड जो है बहुत से एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगी हमें लास्ट में, कि वो कुछ इनकम को कैपिटलाइज करने को बोलेंगे। तो कैपिटलाइज वाला पोर्शन डायरेक्ट कैपिटल में ऐड होगा। जब एडजस्टमेंट आएंगे तो हम वो डिटेल में समझेंगे, यहाँ सिर्फ इनकी मीनिंग हम समझते हैं। अब देखिए उसके बाद है लीगेसीज। लीगेसीज क्या होता है? जब कोई बंदा या पर्सन, ठीक है, जिसके आगे पीछे कोई होता नहीं है, बहुत अमीर आदमी होता है, पैसा बहुत होता है, लेकिन आगे पीछे कोई नहीं है, तो आखिरी समय में वो मरते मरते या जाते जाते एक पुण्य का काम करके जाता है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत किसी ट्रस्ट संस्था को डोनेट करके जाता है। तो उसकी वसीयत के विल के हिसाब से किसी संस्था को जब वसीयत के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी मिलती है, पैसा मिलता है, तो उसे बोला जाता है लीगेसीज। क्योंकि ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये डेली रूटीन की इनकम नहीं है, इसलिए ये जो है कैपिटल रिसिप्ट होती है, ये भी लाइबिलिटी में आती है। उसके बाद है गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल रही है, इनकम में आएगा। उसके बाद है डोनेशन। देखिए संस्था की सबसे बड़ी इनकम जो होती है ज़्यादातर वो डोनेशन होती है, क्योंकि संस्था ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस नहीं करती। तो फिर संस्था इतने सारे एक्टिविटी जो है और प्रोग्राम ले रही है, तो वो जो है उसके लिए पैसा लगेगा, और ये पैसा जो है वो डोनेशन के तौर पे जो है कलेक्ट किया जाता है। तो दो तरह का डोनेशन होता है, एक जनरल और एक स्पेशल। जनरल डोनेशन जो मंथली या डेली, मंथली, वीकली जो है संस्था जो है रिसिप्ट बना के लोगों से जो है पैसा कलेक्ट करती है डोनेशन का, वो जनरल होता है। और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल काम के लिए पैसा मांगा जा रहा है, जैसे कि संस्था के लिए बिल्डिंग बनाना है, संस्था के पास बिल्डिंग नहीं है, स्कूल के पास बिल्डिंग नहीं है, तो बिल्डिंग के लिए फ़ंड जमाया जा रहा है, तो स्पेशल काम के लिए जो फ़ंड जमाया जाता है या डोनेशन लिया जाता है उसे स्पेशल डोनेशन कहते हैं। जिसमें आप देखेंगे बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, टूर्नामेंट फंड, ये सारे जो है ये फंड जो है ये स्पेशल डोनेशन में आते हैं। और स्पेशल डोनेशन या स्पेशल फंड ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसलिए लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद संस्था को और कौन सी इनकम होती है, पैसा कहाँ से आता है? डिविडेंड रिसीव। संस्था के पास अगर किसी कंपनी के शेयर है तो उस पर संस्था को डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद टू हायर रेंट ऑफ हॉल रिसीव। संस्था के पास अगर कोई हॉल है, बड़ा प्रॉपर्टी है, उसको वो जो है
शादी मैरिज सेरेमनी के लिए, प्रोग्राम्स के लिए किराए पे जो है लेट आउट कर सकती है और उससे जो है उसको रेंट मिल सकता है। उसके अलावा बहुत छोटी मोटी इनकम भी संस्था को होते रहती है। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, अगर संस्था के पास कोई पुराना मटेरियल है, ठीक है, फर्नीचर है, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, कोई मटेरियल था पुराना हो गया, संस्था उसको जो है बेच के पैसा कलेक्ट करती है। उसके बाद जैसे ओल्ड मटेरियल में स्पोर्ट मटेरियल भी आएगा। अब स्पोर्ट मटेरियल थोड़ा ख़राब हो गया है या पुराना हो गया है तो उसको जो है वो स्क्रैप में बेच सकते हैं। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर स्क्रैप। अब संस्था के पास जो है, संस्था के मेंबर जो होते हैं उनके घर पे जो न्यूज़पेपर आते हैं तो संस्था जो है कहती है कि ये सारे न्यूज़पेपर जब महीने में एक बार आप कलेक्ट करो और पूरे न्यूज़पेपर लाके संस्था के ऑफिस में या हॉल में जमा करो ताकि संस्था उसे बेच के पैसा कलेक्ट करे। तो यहाँ संस्था के मेंबर जो है अपने घर के न्यूज़पेपर, जिसे वो रद्दी कहते हैं बाद में, वो सारे जो है लाके वो संस्था को देंगे, संस्था वो बेच के पैसा जो है हासिल कर सकती। उसके बाद मिसलेनियस रिसीव, छोटे मोटे जो भी पैसे रिसीव इनकम हो रही है वो सब पैसा रिसीव में आएगा। टूर्नामेंट रिसीव, जैसे संस्था आप देखेंगे बहुत से स्पोर्ट क्लब होते हैं जो मंथली ईयरली टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, वो टूर्नामेंट में उनको बहुत सा पैसा मिल जाता है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज का स्पॉन्सरशिप मिलती है, ये इनकम में आएगा। क्रिकेट फीस हो गया, ट्यूशन फीस हो गया। अब देखेंगे कि संस्था जो है वो ट्यूशन, क्रिकेट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, अलग अलग तरह के फ़ीस के पैसे भी संस्था को मिल सकते हैं। बहुत सी संस्थाएं जो इस तरह पैसा कलेक्ट कर सकती है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ फाइन। फाइन का मतलब उसके जो है संस्था को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं और मेंबर को ये फॉलो करना होता है। अगर कोई मेंबर फॉलो नहीं करे तो उस पर संस्था जो है फ़ाइन लगाती है। उसके बाद आप देखेंगे लॉकर रेंट। ये सब कंटेंट जो मैं पढ़ रहा हूँ ये इनकम वाले कंटेंट है, ये सब इनकम साइड में है। अब ये लॉकर रेंट क्या होता है? लॉकर क्या है? जैसे आप बैंक में देखेंगे कि बैंक में जो है पैसे जमा करने के साथ साथ बैंक अपने कस्टमर को एक लॉकर फैसिलिटी भी देती है कि लॉकर में आप आपके कीमती चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। उसी तरह संस्था के पास भी बहुत से लॉकर फैसिलिटी होती है, वो अपने मेंबर को कम रेंट पे, कम किराए पे लॉकर प्रोवाइड करती है। तो मेंबर जो है, लोग जो है वो लॉकर जो है रेंट पे लेते हैं और मंथली जो है वो लॉकर का रेंट संस्था को देंगे, ये इनकम है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम फ़ी। अब संस्थाएं जो होती है बहुत सी, स्पोर्ट हो गया, कल्चरल हो गया, स्कूल कॉलेजेस है, वो अलग अलग तरह के एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करते हैं और एग्ज़ाम की एक नॉमिनल फ़ीस लेती है और वो फ़ीस का पैसा संस्था को मिलता है जो इनकम होता है। इसके बाद यहाँ पे एक टू ओपनिंग, यहाँ पे एक आपको दिखेगा क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट का, बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए यहाँ दो ओपनिंग बैलेंस होते हैं, एक डेबिट ओपनिंग होता है और एक क्रेडिट ओपनिंग होता है। तो कैश बुक में हमेशा डेबिट ओपनिंग दिखेगा आपको। अगर क्रेडिट ओपनिंग है तो समझिए वो एक तरह का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक हमको दे रही है, एक तरह का लोन है। तो लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ डेबिट में आएगा। और कैश एसेट है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अब ये हो गए रिसिप्ट साइड के सारे कंटेंट। अब इसके बाद हम देखेंगे पेमेंट में कौन कौन से कंटेंट आएंगे। तो अब याद रखिए जो भी पैसा संस्था को आ रहा है, चाहे वो किसी भी सोर्सेज से आए, तो वो सब रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा और संस्था से जो पैसा जा रहा है वो सारा का सारा पेमेंट में आएगा, चाहे वो पिछले साल का, इस साल या नेक्स्ट ईयर। आप जो भी साल का पेड कर रहे हो इस साल, वो सारा का सारा आपको पेमेंट में रिकॉर्ड करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर भी ओपनिंग है, ये डेबिट ओपनिंग है और ये क्रेडिट ओपनिंग, ये एक तरह का ओवरड्राफ्ट है। अगर क्रेडिट ओपनिंग दिख रहा है आपको तो समझिए कि लोन है, ये लोन का बैलेंस है एक तरह का। अब उसके बाद अब पेमेंट साइड के कंटेंट देखेंगे हम। पेमेंट में देखिए लिखा है बाय सैलरीज। सैलरीज अगर पे की जा रही है, कुछ अगर एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करती है संस्था तो उनको सैलरी पे करना है, वो पेमेंट में आएगा। अब सैलरी हम पिछले साल की भी इस साल पे कर सकते हैं और इस साल की भी पे कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर की भी पे कर सकते हैं। अब पिछले साल की अगर कुछ बाकी है तो इसी साल पे करेंगे और इस साल की तो आपको देना है। इसके अलावा अगर एडवांस में आप पिछले नेक्स्ट ईयर का भी देना चाहते हैं तो तीनों साल की सैलरी यहाँ आएंगी। उसके बाद है रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, वही है। हॉल अगर आपका किराए पे है, आपने हॉल लिया है, उसमें आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं
तो आपको रेंट देना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। उसके अलावा संस्था के बहुत से ऐसे छोटे मोटे ये खर्चे आप देखेंगे, वन बाय हम जो है फटाफट इसको देखते चलते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ऑडिट फी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वेजेस, परचेज ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। ये आप यहाँ पे याद रखिए कि अगर आप कोई स्पोर्ट मटेरियल परचेज कर रहे हैं तब भी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। ये कुछ ऐसे कंटेंट है जिससे रिलेटेड वर्किंग नोट बनेंगी जो एक्सपेंडिचर में ही आएंगे। ये हम आगे जो है वर्किंग नोट में देखेंगे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको आप खरीद रहे या पेमेंट कर रहे जिसके लिए, और आपके फर्म से पैसा जा रहा है। इंश्योरेंस, टेलीफोन मोबाइल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, पोस्टेज, कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है ट्रैवलिंग, एक्सपेंसेस फॉर एनुअल फंक्शन। जितनी भी संस्थाएं होती है वो साल में एक बार कुछ ना कुछ फंक्शन जो है ऑर्गेनाइज करती है जिसमें सारे लोगों को गैदर करते हैं, उनका गैदरिंग होती है। फिक्स डिपॉजिट, पैसा जा रहा है, ये एसेट में आएगा। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, एसेट में। ये यहाँ तक आप देखेंगे फिक्स डिपॉजिट के पहले तक तो सारे के सारे एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपका डेली बेसिस पे होते हैं। और इसके बाद अब आप देख रहे हैं फिक्स एसेट के बाद ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो एसेट साइड में आएंगे, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। उसके बाद लिखा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ये एक्सपेंडिचर है। ऑफिस एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये एक्सपेंडिचर में आएगा। यहाँ पे देखेंगे अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये एसेट जो है फिक्स एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसके बाद लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, कैश इन एंड कैश एट बैंक। ये रिसिप्ट माइनस पेमेंट करने के बाद आता है। तो आपको यहाँ ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इसका टेंशन लेना है, क्योंकि आपको ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और इसके बेसिस पे हमें इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। अब बहुत से स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब दिया है तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं। अरे वो दिया तो है, लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो समझना आपको पड़ेगा ना, कि इसमें जो कंटेंट है उनका मीनिंग क्या है, कौन कौन से कंटेंट आते हैं रिसिप्ट पेमेंट, क्योंकि इसके बेसिस पे ही तो बनने वाला है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो ये जब तक आपको समझेगा नहीं तो इसके बेसिस पे आप इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट कैसे बना पाएंगे। तो वो बनाने के लिए आपको ये इनकम एक्सपेंडिचर बनाने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको ये रिसिप्ट पेमेंट के कंटेंट समझने हैं, जिसमें आपने ये देखा है कि एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लीगेसी, डोनेशन, स्पेसिफिक फंड, ये सब सारी चीज़ें जो है ये क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। और भी बहुत से कंटेंट है जो आगे आने वाले हैं जिसका हम मीनिंग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये थे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट था, और ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के कंटेंट जो हमने देखे, फॉर्मेट देखे। अब यही कंटेंट जो है इसी के बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है। तो उसकी एक हिंट, एक ट्रिक्स मैं आपको दूंगा, वो ट्रिक्स आप देखिए नेक्स्ट लेक्चर में, वो ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो ट्रिक्स आप समझिए, वो ट्रिक्स आप देखने के बाद जो है आपको जो है सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक फॉर्मेट था, ये कंटेंट थे जो आपको बताए गए इस लेक्चर में कि कौन कौन से कंटेंट जो है यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में आते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो डियर स्टूडेंट, ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट और उसके कंटेंट जो हमने यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन देखा है कि कौन कौन से कंटेंट आते हैं, किस तरह रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनता है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में ये दिया रहेगा और इसके बेसिस पे आगे का बनाना है। लेकिन इसके कंटेंट क्या क्या है, किस तरह आएंगे, इसलिए इसका फॉर्मेट देखना ज़रूरी था। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कंटेंट रिसिप्ट पेमेंट का अगर समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी हमें ज़रूर बताएं, तो उसे हम जो है उस पर एक जो है उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए, और कौन कौन से लेक्चर पे, कौन कौन से टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे कि किस तरह हम जो है इसके बेसिस पे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।